یہ ہے وہ قاتل میکڈونلڈ جس نے معصوم بچوں کو، فلسطین کے معصوم بچوں کا اس میں جو ہے نا قتل کے ملوث ہے یہ لوگ 30,000 بچے اس میں جو مرے ہیں، اس کے پیچھے ان لوگوں کے ہاتھ ہیں. یہ میکڈونلڈ، KFC، یہ ہیں وہ لوگ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ویس ملک اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. ناظرین آج میں ایک کافی عرصے بعد ولاگ بنا رہا ہوں، اور اس کی جو ریزن ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کا بیہیویئر اس طرح کا ہے. اور آج کا جو ولاگ ہے وہ ہے فلسطین کے حوالے سے. اور میں آج ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ریئیکشن ہے حوالے سے. مجھے پتا ہے کہ لوگوں کا ریئیکشن بالکل انتہائی کم ہوگا، لیکن پھر بھی میں اپنا فرض ادا کروں گا اور میں فلسطین کے لیے آواز اٹھاؤں گا. کیا کہتے ہیں، اسرائیل کو کیا پیغام دیں گے؟ نو کمنٹس. ایک بندہ مل گیا. اسرائیل کو کوئی پیغام دو گے؟ اسرائیل کو کوئی پیغام نہیں. اسرائیل کو کوئی پیغام دیں گے چاچو جی؟ یہ میکڈونلڈ، یہ کھانا ہم لوگ چھوڑ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے بغیر مر جائیں گے. یہ میکڈونلڈ ہے، یہ وہی KFC ہے، یہ وہی میکڈونلڈ جو یہودیوں کو پروموٹ کر رہا ہے، اور ہم لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اسرائیل کو کیا کہنا چاہیں گے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ناظرین ایسے، یہ جیسے یہ بچہ ہے، یہ مجھے یہ ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، یہ آپ اندازہ لگا لیں. یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں لوگوں کا ریئیکشن بڑا میٹر کرتا ہے، جو آپ لوگوں کی رائے بڑی میٹر کرتی ہے جو دیکھنے والے ہیں. آگے چلتا ہوں، میں لوگوں سے بات کرتا ہوں. اسرائیل کو کیا پیغام دو گے؟ نو کمنٹ. اسرائیل کو نہیں ٹھیک ہے، مہربانی. اسرائیل کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ اونچا بولیے گا بھائی. کوئی نہیں، کوئی بات نہیں. بھائی نے کہا کہ کوئی پیغام نہیں. فلسطین بچے مر رہے ہیں، غزہ کے بچے مر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. کسی سے میں کہہ لوں گا نا، میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ لوگوں کو کمنٹس دیکھیں، لوگ اس طرح کے ریئیکشن کرتے ہیں کہ نو کمنٹس نو کمنٹس نو کمنٹس. حالانکہ بولنا چاہیے لیکن نہیں بولتے پھر بھی. اسرائیل کو کیا پیغام دینا؟ ہمارے خود کے مسلمان ملک بھی چھپ جاتے ہیں. پیغام تو ان کو دینا چاہیے، ہم اسرائیل کو تو نہیں دینا چاہیے. انہوں نے کون سا ہمارا پیغام مانگا؟ ہمارے حکمران چھپ گئے، عوام کو تبھی بھیجو ابھی چلے جائے. بالکل عوام جو ہے نا ایمان کا جذبہ، ہمارے حکمران سارے انگریزوں کے. اسرائیل کو بھائی کاروباری لائن ہے. اسرائیل کو کوئی پیغام دیں گے؟ کسی بچوں کو کوئی پیغام دیں گے؟ کوئی ایک میسیج؟ نو کوئی بات نہیں، ذہن میں نہیں ہے. لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، میں نے اس دن بھی آپ کو بولا تھا کہ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی لیے ہم لوگ نا عذاب مسلط ہو رہے ہیں ہم لوگوں کو. یہ دیکھتے ہیں یہی کہ مسلمانوں کا بھی ایک ہی نہیں ہے، ایک ہو ان کا ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے. سارے تو کھاتے پیتے حرام سور منہ پہ لگا ہوا ہے. انسان بن جائے، تمام مسلم امت اگر اٹھ گئی، اسرائیل کو راستہ نہیں ملے گا اپنا سر چھپانے کے لیے. اور مسلمانوں کو مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک جہان ہو کے اسلامی ممالک کو بیچ میں آنا چاہیے. جتنے بھی غیر مسلم ہیں انہیں بھی مسلمانوں کی ہیلپ کرنا چاہیے. مسلمان ہونے کے ناطے تمام کا فرض ہے ان کا شانہ بشانہ ان کا ساتھ دیں. میں چلتا ہوں، لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں اسرائیل کے لیے کچھ کہنا چاہوں کہ نو کمنٹس. کہ لوگ کہتے ہیں کہ نو کمنٹس، لوگ بات نہیں کرتے، اور نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں. یہ صرف ایک بے حسی کا عالم ہے. ابھی یہاں پہ کسی کا بچہ گم ہو جائے تو سب شور کریں گے کہ یار یہ میرا بچہ گم ہو گیا، یہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور وہاں پہ جو ہزاروں بچے مر رہے ہیں ان کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ناظرین یہ ایسا تو نہیں چلے گا نا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ لوگوں سے بات کرنی پڑے گی، لیکن لوگ بات نہیں کرتے. سر فلسطینیوں کو کوئی میسیج دیں گے؟ اسرائیل کو کوئی میسیج دیں گے؟ نہیں سر. بھائی جان آپ بتائیں. یہ دیکھ لیں کوئی میسیج نہیں. آگے چلتے ہیں. اسرائیل کو کوئی میسیج، فلسطین کو کوئی میسیج؟ ہمیشہ کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ہمیں ادھر جانے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا تو ڈیفینیٹلی یوز کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کافی آپشنز ہیں ہمارے پاس. وہ ہمیں اسٹرائک کرنی چاہیے اور بڑے لیول پہ اسٹرائک کرنی چاہیے، اور یونٹی میں سب کچھ رکھا. بالکل، بڑی اچھی بات کی. تھینک یو. بھائی جان آپ کچھ کہیں گے؟ نہیں. نمبر آف پیپل جو ہے نا انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. حالانکہ بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی جو ہے نا وہ اپنی دنیا میں مگن ہے. رہے مگن کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم کچھ نہ کچھ آواز تو اٹھائیں، بولے تو صحیح. ایسے تو نہیں ہے کہ بالکل اپنی دنیا میں رہیں. اور کس سے بات کریں مجھے بتائیں، کون ہے بات سننے والا؟ یہاں پہ عوام بات نہیں سنتی تو حکمرانوں نے کیا سننا ہے؟ فلسطینیوں کے لیے کوئی میسیج دیں گے؟ اسرائیل کو کوئی میسیج دیں گے؟ کوئی میسیج، کوئی چیز، کوئی میسیج نہیں. کوئی ایشو نہیں ہے. طے کہ زیادتی ہو رہی ہے، بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، اور کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے ہمارے اسلامی ممالک ان کے لیے.
हमें क्या करना चाहिए? इमदाद के। हमें क्या करना चाहिए? सर देखें, हम जहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग अपनी आवाज़ उठा सकते प्लेटफॉर्म सर हम कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ से, आवाज़ कोई है नहीं, सिर्फ हमारे पास सोशल मीडिया जहाँ पे हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हकीकत बात है। एहतजाज करेंगे वही हाल होगा जो आम आवाम के साथ होता है, उठा के अंदर कर दिए जाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये हम पे डिपेंड है, हम कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इतनी अच्छी बात की, अगर करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन करना नहीं चाहते। हम लोग तो KFC मैकडोनल्ड को नहीं छोड़ सकते, तो हम लोग बाकी चीज़ों को क्या छोड़ना है? अगर हमें एहसास नहीं ना होगा कि हमारे भी माँ बहनें बच्चे हैं, Exactly, तो यही point है उनके मेरा। बारे में कुछ नहीं सोच सकते। एक्चुअल में लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है, रेप हो रहा है, बच्चों को मार रहे हैं, उनमें हमारा भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते। तो मैंने पहले ही कहा था कि एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा, कि देखते हैं कि लोग कितना बोलते हैं। लोग वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हर बंदा यहाँ पे साइंसदान है, हर बंदा यहाँ पे बड़ा वो बना हुआ है, समझदार बना हुआ है, लेकिन इस हक पे, इस पॉइंट पे कौन बात करता है, देखते हैं, आगे चलते हैं। साहब ने देखा ही नहीं है कि वहाँ पे फ़लस्तीनियों को क्या हो रहा है, यानी कि हमें यही नहीं पता कि वहाँ पे चल क्या रहा है। ऐसे भी लोग हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं। सब फ़लस्तीनियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स, नो भाई। फ़लस्तीनियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नो इशू, नो इशू। हाँ, ये वो कह रहा थाने से फ़ोन आ जाएगा। चुप करके बैठना नहीं चाहिए, वीडियो तक ना रेल करें, जो करें यही करें। बिल्कुल, थैंक यू। फ़लस्तीनियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बेबसी का आलम ये है कि कुछ कर नहीं सकते, और अफसोस इस बात का कि कुछ बोल भी नहीं सकते। फ़लस्तीनियों के लिए कोई बात बुलंद करना चाहिए? जी आप फ़लस्तीनियों के लिए नहीं, कोई मसला नहीं है, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं। इतना सीरियस मसला है, लेकिन लोग जो है ना वो उस पर भी मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं, लोगों का काम है, लेकिन ये एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा था, जब तक हमारे अपने घर में इस तरह के मसले ना होते, फिर देखिएगा कैसे सारे लोग सीधे होते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। और उसके यार उनके लिए जो हमारे हुक्मरान हैं इन्हें कुछ करना चाहिए, फौज को कुछ करना चाहिए। हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। ना पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचा है इन लोगों ने, और ना फ़लस्तीनियों के बारे में आज तक सोचा है। 23 मार्च पर मिसाइल तो बड़े चलाए जाते हैं, लेकिन फ़लस्तीन के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। जहाँ पे चलाने चाहिए वहाँ पे फ़लस्तीनियों को, पाकिस्तान को इस बात पर फ़ख्र करना चाहिए था कि जब पाकिस्तान एक ताकतवर फ़ौज बनी थी, तो सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा जश्न फ़लस्तीनी फ़ौज ने मनाया था कि हमारा पाकिस्तानी मुल्क एक ताकतवर बन गया। पूरे मुसलमान एक होकर, पूरी दुनिया के मुसलमान एक होकर उनकी ईंट से ईंट बजाओ। उनको ऐसे समझ में नहीं आई, किस चीज़ का हिसाब देना है। हाँ जी। हमने क्या किया है, अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए भेजा है, ये हमें अपना मकसद बताना है उनको, और उनको इशारा देना है कि हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की सर आपने, थैंक यू। ये नाज़रीन हमारी ड्यूटी है, और ये इसको हम अदा करना, ये बेसिकली हर बंदे का काम है कि इसको जो है ना वो लेके चले, और कम से कम एटलीस्ट ज़ुबान से ज़रूर बोले। मैं भी नहीं कुछ कर सकता, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बोलें यार। हम लोग तो इस चीज़ में भी मजाक उड़ाते हैं कि पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों की KFC जितनी भी कंपनियां उसको बाइकाट करें, वहाँ गज़ा के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। ये एक नस्ल खुशी है, ये एक कोई जंग नहीं है। तो इससे मेरा पैगाम है कि इसराइल के जितने भी हैं मुसलमानों के ममालिक के अंदर कंपनियाँ, उन सारों को बाइकाट करें। भाई इसराइल के लिए कुछ मैसेज नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, कोई बात नहीं। खाना पीने से फुर्सत हो तो हमें इन लोगों की परवाह हो ना, हमें बस अपनी पड़ी हुई है। दुख तो बड़ा होता है नाज़रीन, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। चलते हैं। फ़लस्तीनियों के लिए कोई मैसेज, इसराइल के लिए कोई मैसेज? अल्लाह पाक उनके लिए करम करें, उनके ऊपर रहम करें बस। सर छोटे छोटे जो बच्चे मर रहे हैं, औरतों के साथ ज़्यादती की जा रही है, वो मुसलमान माएँ बहनें, हमारी अपनी माएँ बहनें हैं, बच्चे हमारे हैं, कब तक ये जुल्म होता रहेगा, हम कब तक खामोश रहेंगे? बस ये क्या कर सकते हैं, हर कोई एक दूसरे को देख रहा है बस कि कौन उठेगा कौन क्या करेगा बस। सर होना क्या चाहिए आपके ख्याल में? यही चाहिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी हेल्प करे, उनकी मदद करे। हम यही कर सकते हैं, उनकी कोई जो भी गैबी जो ट्रस्ट वगैरह कोई ऐसी जो इमदाद हो जो हम करें, जो प्रॉपर उन तक पहुंच सके। ये ना हो कि जो हम उनके इमदाद करते हैं
फर्ज करें 1000 रुपये किया तो उन तक तो 50 भी पता नहीं 50 भी ना पहुँचे, हमें ये भी श्योर नहीं है कि वहाँ तक पैसे पहुँचेंगे भी मदद कि तो नहीं। आवाम करना चाहती है, लेकिन आगे कुछ नज़र भी है ना तो फिर बंदा करता भी अच्छा लगता है। नाज़रीन कि देखें, लोगों ने कमेंट किया कि हम लोग करना चाह रहे हैं कि हमें कोई प्लेटफॉर्म, हमें कोई ट्रैक तो मिले जहाँ पे हम चढ़ सके, जहाँ पे हम लोग वहाँ हमें पता हो कि वहाँ तक हमारी इमदाद या हमारे पैसे, हमारे कपड़े, हमारा खाना पीना वहाँ तक पहुँचेगा। प्रॉब्लम पॉइंट ये है। सो नाज़रीन, ऑलमोस्ट मैंने लोगों से बात की, लोगों के साथ डिस्कशन किया। फिर मैंने आपको पहले ही कहा था कि लोगों की राय मैं आपके सामने पेश करूंगा और लोगों से पॉइंट भी जानूंगा, लेकिन लोग मजाक भी कर रहे थे, लोगों ने कमेंट भी नहीं किए। मैंने आपको 20 लोगों से बात की होगी तो उसमें से सिर्फ 10 लोगों ने, शायद 10 में भी कम लोगों ने मुझसे बात की होगी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग कितने एक खुददार कौम है, हम लोग कितने एक हमारे अंदर जो है ना वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाली कौम है। ये एक्चुअली तब तक नहीं होगा जब तक हमारे अपने घर पे ना हो। तो ये वक्त दूर नहीं है कि जब ये चीज़ हमारे घर पे भी हो सकती है और होगी, याद रखेगा, और तब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। आज अगर हम उन लोगों के लिए खामोश है ना, तो कल को हमारे लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। सो ये थी मेरी वीडियो, ये था मेरा जो मकसद था। बाकी अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह हम लोग उनके साथ हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के लोगों के लिए आसानी पैदा करे। हमारी माएँ बहनें वहाँ पे स्ट्रगल कर रही हैं, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, बीमार हैं, उनकी याद का मसला है, खाने पीने का मसला है, कपड़ों का मसला है, औरतों के साथ बरहना करके उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें अगर एक टॉपिक को भी उठाया जाए तो सारी ज़िंदगी भी हम किताबें लिखते हैं तो वो ख़त्म ना हो। इतनी जुल्म ज़्यादती की जा रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? उनका क्या कसूर है? बड़ों का क्या कसूर है? जो भी है कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा है कि हम लोग क्यों खामोश हैं। खैर, यही था मेरा आज का जो मकसद था, यही था मेरा आज का व्लॉग। मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ आप लोगों की जो है ना वो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और ये ज़रूरी है, लेकिन ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए और अपने लिए, खुद के लिए, सबके लिए, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं बाकी व्लॉग्स अगर बनाऊँगा तो इस व्लॉग को अगर मैं नहीं हाईलाइट करूँगा तो ये मेरे लिए, ये मैं समझूंगा कि मैं भी इस चीज़ में गुनाह का शिकार हूँ। तो ये चीज़ ज़रूरी है और इसलिए मैंने इसको अदा किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।